ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ملک میں سیلاب اور طوفانی بارشوں نے ہر جانب تباہی مچا دی ہے۔ بیشتر گاؤں اجڑ گئے ہیں جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ سیلاب اور بارشوں سے مزید 19 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ NDMA کے مطابق سندھ میں مزید 12 افراد، خیبر پختونخوا میں 4 افراد لقمہ اجل بنے۔ بلوچستان میں جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی جبکہ ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 1208 ہو گئی۔ سندھ میں 432 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں 7,33,488 مویشی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ سندھ میں سیلاب سے 2328 کلومیٹر سڑک کو نقصان پہنچا جبکہ ملک بھر کے 243 پلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا ہے۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں تھم نہ سکیں۔ مانسون بارشیں اور سیلاب سے 24 گھنٹوں میں مزید 19 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1208 ہو گئی ہے جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی کل تعداد 4896 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیلاب کے باعث سندھ میں سیلاب سے 432 افراد، بلوچستان میں 257، خیبر پختونخوا میں 268 اور پنجاب میں 188، آزاد کشمیر میں 41، گلگت بلتستان میں 22 افراد جان کی بازی ہارے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 526 مرد، 416 بچے اور 244 خواتین شامل ہیں جبکہ سیلاب سے ملک بھر میں 4896 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ NDMA نے بتایا کہ سندھ میں سیلاب سے 2328 کلومیٹر سڑک کو نقصان پہنچا ہے جبکہ بلوچستان میں اب تک 1000، خیبر پختونخوا میں 1589 کلومیٹر سڑک تباہ ہوئی ہے۔ NDMA کا کہنا ہے کہ سیلاب اور بارشوں سے ملک بھر کے 243 پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے علاوہ سیلاب میں اب تک 7,33,488 مویشی بہہ چکے ہیں۔ صوبہ سندھ میں مونسون سیزن کی طوفانی بارش اور سیلاب سے قیامت خیز تباہی ہوئی ہے۔ طوفانی بارش اور سیلاب سے 14,55,251 مکانات متاثر ہوئے جبکہ 1,53,91,030 افراد بے گھر ہو گئے۔ سیلاب سے 552 ہلاکتیں، 21,885 افراد زخمی بھی ہوئے۔ سیلابی ریلے میں 1,09,101 مویشی بہہ گئے۔ 31,73,383 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بے گھر 6,70,602 افراد ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ISPR کے مطابق مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے 200 ہیلی کاپٹرز نے پرواز بھری جبکہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن اور ادویات بھی پہنچائی گئیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 1,991 پھنسے افراد کو نکالا گیا۔ 24 گھنٹے میں 162.6 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا۔ اب تک 60,000 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا گیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ ملک بھر میں امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 221 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، ایسے میں پاک فوج سیلاب متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ISPR کے مطابق سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آرمی ہیلی کاپٹرز کے 200 پروازوں کے ذریعے امدادی سرگرمیوں کو ممکن بنا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن اور ادویات بھی پہنچائی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,991 پھنسے افراد کو نکالا گیا جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 162.6 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا ہے۔ اب تک 50,000 سے زائد افراد کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں 147 ریلیف کیمپ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 221 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور ان پوائنٹس پر 1,350 ٹن سے زائد خوراک، ادویات اور دیگر غذائی اشیاء جمع کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اب تک 60,000 سے زیادہ مریضوں کو مفت علاج اور ادویات فراہم کی جا چکی ہیں۔ پاک بحریہ کی بھی ملک بھر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان راجن پور اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں فضائی اور زمینی آپریشن جاری۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور موبائل میڈیکل ٹیمیں سہولیات کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ دادو کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے
75 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جبکہ ریسکیو آپریشن کے تسلسل میں زہرو گوٹ سے پانی میں محصور 60 افراد کو بھی نکال لیا گیا۔ لاڈن ولیج اور دادو کے 4 دیگر علاقوں سے بھی 50 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ضلع غزر کے لیے 10 کروڑ روپے فوری امداد کا وزیراعظم نے اعلان کیا ہے۔ کہا کہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، درد بھری کہانی ہے۔ پاکستان پہلے ہی مشکل میں تھا، ایک اور امتحان سر پر آ گیا۔ ہم دکھ اور مصیبت کے وقت میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ حقدار کو معاوضہ دیا جائے گا، معاوضے کی ادائیگی میں سیاست آڑے نہیں آئے گی۔ والد کی والدہ بھی چلی گئی اور بچے بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اس طرح یہاں پر اور بھی خاندان بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے آگے ہماری مجال نہیں ہے، سوائے کہ جانے والوں کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ضلع میں 17 اموات ہوئی، غزر کے ضلع میں 17 اموات ہوئی۔ ہم نے ہر جگہ وفاقی حکومت نے 10 لاکھ روپیہ فی فرض جو کہ اللہ کو پیدا ہو گیا ان کے خاندان والوں کو ہم معاوضہ دے رہے ہیں، لیکن میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ معاوضہ آپ کے دکھ کو مٹا نہیں سکتا، آپ کو تسکین نہیں پہنچا سکتا، لیکن بہرحال زندگی بسر کرنی ہے، اور اس خدائے بزرگ و برتر کا بھی حکم ہے کہ ہمت کرو اور اس میں زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے نان نفقہ، اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے۔ تو یہ 10 لاکھ روپیہ وفاقی حکومت نے ہر خاندان کے لیے مقرر کیا جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں یا چلے گئے ہیں، اور آج ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو یہ جو معاوضہ ہے آپ کو یہاں پر 17 افراد کو مل جانا چاہیے۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی ترکی کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے ترکی کے صدر اور قیادت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان میں سیلاب سے 300 سے زائد بچوں کی اموات ہوئی۔ ترکی کی جانب سے ٹرینوں کے ذریعے پاکستان امداد آ رہی ہے۔ ترکی کا امدادی طیارہ بھی پاکستان آ چکا ہے۔ امداد، ہمدردی اور مخلصانہ اقدامات پر ترکی کا مشکور ہوں۔ Taking your time and taking your flight to visit Pakistan at this hour of need. Your gesture and your support and very valuable timely support is a great manifestation of our unique relationship, our friendship, our brotherhood and very close relations. My brother President Tayyip Erdogan was very kind to called me on 27th of August and offered his condolences for those thousands of people who have died, including about 300 children, and extended his fullest support for the people of Pakistan. We are also very grateful to the people of Turkey who have, like always, extended their support to the people of Pakistan. I know that private businessmen and other friends from Turkey are sending lots of goods to Pakistan, and we are very thankful for this timely support. Within no time, after my telephone conversation with President Tayyip Erdogan, military airplanes took off from Istanbul and Ankara with plane
full of goods, and now trains have also started moving towards Pakistan. This is something we deeply appreciate and we are deeply touched. We have received tents, medicines, food and other items which are being distributed to various parts of Pakistan. These unprecedented cloudbursts and torrential rains have hit the province of Sindh the most, the province of Balochistan, the province of KP, and the province of Punjab, and the regions up north, Gilgit, Baltistan, and partly Azad Jammu and Kashmir. And these rainfalls have been the highest in the last 40 years. We are very grateful to all of you, and I'd like to thank you once again for your visit. This will convey a very warm and wonderful message to the four nook and corner of Pakistan, and the people of Pakistan would be deeply happy and appreciate your gesture. Kindly convey my very warm regards to President Erdogan and Turkish leadership. I know National Disaster Management Agency has arranged a presentation today later in the morning, but I would just touch upon the broad parameters of this devastating damage done to Pakistan. As I said, more than 1,000 people have been killed by these floods, including 300 children. Millions of people have become homeless. They have lost their life savings, crops washed away, livestock drowned, and damage to houses. People are now spending nights under open sky. So I have not seen this kind of catastrophic situation in my lifetime, and I hope and pray to Allah Almighty that this will never happen again. With Allah's support and your wonderful help, we will inshallah recover from it and move forward. Tashakkur daram. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात हुई, जबकि इस मुलाकात में दो तरफा अहम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सैलाब से मुतासरा खानदानों से भी अफसोस का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुश्किल घड़ी में बरतानिया की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि आलमी शराकत दारों की इमदाद सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद और बहाली में अहम होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। मुलाकात में अहम दो तरफा उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सैलाब से मुतासरा खानदानों से भी अफसोस का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुश्किल घड़ी में बरतानिया की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ कहते हैं कि आलमी शराकत दारों की इमदाद सैलाब से मुतासर अफराद की मदद और बहाली में अहम होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान को सैलाबी सूरत हाल से भी आगाह किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सऊदी अरब की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। और अभी आपको बताएं कि कतर की जानिब से इमदादी सामान लेकर एक और जहाज शहर कराची के एयरपोर्ट पहुंच गया। सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पर इमदादी सामान वसूल किया। कतर से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का वर्क भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए साथ आया। सईद गनी कहते हैं कि कतर हुकूमत और वहाँ की आवाम के तहे दिल से मशकूर है, जिन्होंने पहले रोज से ही मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी रखा।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सैलाब का सारा पानी समंदर में जा रहा है, किसी को कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के लोग पानी पर भी सियासत करते हैं। इलेक्शन के बाद 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे तो उस वक्त कालाबाग डैम भी बनेगा। ये इमरान खान के अलावा कोई नहीं बना सकता। कालाबाग डैम से बिजली बनेगी और पानी भी महफूज होगा। कालाबाग डैम बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा। तमाम एक्सपर्ट्स को दोबारा बिठाया जा सकता है और काम शुरू किया जा सकता है। खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि हालिया सैलाब से सिंध भर में 30 लाख कच्चे मकान तबाह हो चुके। जो घर बचे हैं वो अब रहने के काबिल नहीं। सिंध हुकूमत ने अब तक 84,000 से ज़ायद खैमे लोगों को दिए। तकरीबन 50 लाख खैमों की ज़रूरत है। मुतासरीन के लिए राशन बैग्स के मजीद ऑर्डर्स दे दिए हैं। पानी निकालने के लिए कट लगाने की खबरें गलत हैं। सैलाब ने अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर किसी की जमीन नहीं बख्शी। मीडिया मसाइल को उजागर करे, इशू ना बनाए। जो डिस्प्लेस्ड है, अपने घर पे नहीं है, अगर कोई कच्चा मकान बिल्कुल गिरा नहीं है तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पे लोग रह सकते हैं। इसलिए कि जैसे वो धूप निकलती है, सूखता है, कोई और मकान वो अपने घरों से बाहर है, क्या फिर वो अपने घरों से बाहर जो करीब तरीन ऊंचा इलाका है, कोई रोड है, उधर बैठे या किसी रिलीफ कैंप में है, या अपना गांव अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों जानने वालों के पास में घर पे नहीं है। अगर ये सिचुएशन गिरा नहीं इस वक्त है, मैंने आपको मकान बता दिए। जो पक्के मकानात हैं वो भी कई जगह पे ऐसे हैं कि उनको इतना डैमेज हुआ है कि वो रहने के काबिल नहीं है। और ये कोई पानी आने से कच्चे मकानात नहीं गिरे, ऊपर से जो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है। जो कहते हैं कि सिंध में, पूरे सिंध में अगर एवरेज निकालें तो 1100 मिलीमीटर बारिश हर सिंध के हर इंच पे पड़ी है। एक जगह पटीरन में तो आप सबने पता है 1752 मिलीमीटर बारिश पड़ी है। एक दिन के अंदर 355 मिलीमीटर, अगले दिन 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो रिकॉर्ड है अगस्त के महीने में 700% से ज्यादा, 784 कह रहे हैं, 800% ही राउंड ऑफ कर लेते हैं, ज्यादा बारिश हुई है नॉर्मल से। हमें जो महकमा मौसमियात ने, लोग कहते हैं भाई इतनी बारिश की तैयारी क्यों नहीं थी, 10 मई को रिपोर्ट फाइनलाइज की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अबव एवरेज बारिश होगी। ये क्वांटम नहीं बताया था हमने, हम सब आपसे कहते थे बारिश इस साल ज्यादा होंगी। और 15 अगस्त तक तो हम जो भी था तैयारी के साथ मुतमईन भी थे। बारिश 15 अगस्त से पहले भी बहुत हुई थी, कैसे नहीं कि बारिश नहीं हुई थी, नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन 16 के बाद जो वो एक हफ्ता गुजरा है उसमें जो बारिश हुई है, उससे मैं बड़ा कैंडिडली फ्रैंकली आपसे कहूंगा कि हमें नहीं अंदाजा था और हमारी तैयारी उस बारिश की नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि ना हमारे पास रिसोर्सेज है कि इस टाइप की बारिश की तैयारी हम कर सकें। सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी काम कर रही है। मुतासरीन को स्कूलों और टेंट सिटी में रिलीफ कैंप्स में ठहराया जा रहा है। मुतासरीन को 2 वक्त का मयारी खाना और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। रेस्क्यू और रिलीफ के अमल में कोई भी कोताही नाकाबिल बर्दाश्त होगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की हिदायत है कि मुतासरीन की दाद रसी की जाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुतासरीन की इमदाद के लिए सिंध हुकूमत पूरी मशीनरी के साथ काम कर रही है। मुतासरीन को स्कूलों और टेंट सिटी में रिलीफ कैंप्स में ठहराया जा रहा है। मुतासरीन को 2 वक्त का मयारी खाना और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही है। BISP के तहत मुतासरीन को 25-25 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हो जाती सिंध हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। रेस्क्यू और रिलीफ के अमल में कोई भी कोताही नाकाबिल बर्दाश्त होगी।
सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भुट्टो के शहर लाड़काना का दौरा किया। लाड़काना में इमदादी सरगर्मियों समेत शाहराहों पर जमा शुदा पानी की निकासी का भी जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शदीद बारिशों से मुख्तलिफ जगहों पर शगाफ पड़ने से सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई। सिंध में बिजली के बिलों और टैक्स की मुआफ़ी के लिए वफाक से कहा गया। बारिश से खड़ी फसलें तबाह हुई। रास्ते बंद होने से फूड सिक्योरिटी के इशूज सामने आए हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का लाड़काना का दौरा। लाड़काना में इमदादी सरगर्मियों समेत शाहराहों पर जमा शुदा पानी की निकासी का जायजा। नासिर शाह कहते हैं कि शदीद बारिशों से मुख्तलिफ जगहों पर शगाफ पड़ने से सूरत हाल ख़राब हुई। सिंध में बिजली के बिलों और टैक्स की मुआफ़ी के लिए वफाक से कहा गया। रास्ते बंद होने से फूड सिक्योरिटी के इशूज सामने आ रहे हैं। बारिश से फसलें तबाह हो गईं। बात करेंगे सिंध के वजीर बराए अक़लियती उमूर गयान चंद ईसरानी की, जिन्होंने खानपुर और कोटरी का दौरा किया है। दरिया सिंध के हिफाजती पुश्तों और पानी के बहाव का भी जायजा लिया। गयान चंद ईसरानी कहते हैं कि खानपुर और कोटरी के रास व मूरी के करीब रिवायती तौर पर हिफाजती बंद हसास रहे हैं। दरियाई बंद महफूज हैं, जबकि आवाम को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। महकमा आबपाशी और ज़िला इंतज़ामिया बंदों की 24 घंटे निगरानी कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर गयान चंद ईसरानी ने खानपुर और कोटरी का दौरा किया। दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों और पानी के बहाव का जायजा लिया। कहा कि दरियाए बंद महफूज हैं, आवाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी कहा कि महकमा आबपाशी और ज़िला इंतज़ामिया इन बंदों की 24 घंटे निगरानी कर रही है। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने उमरकोट के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। बजाबंद और समारोह के दरमियान पॉकेट ड्रेन में पानी के बहाव का और अखराज का और आमद का जायजा लिया। कहते हैं कि ड्रेन की गुंजाइश 40 से 45 क्यूसिक है, मगर पानी गुंजाइश से कहीं ज्यादा आ गया है। इस सूरत हाल में पानी आएगा तो हमारे शहर के शहर डूब जाएंगे। कहा कि हमने जिले में कुदरती आबी गुजरगाहें क्लियर करने की कोशिश की है, बल्कि कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह का उमरकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहते हैं कि ड्रेन की गुंजाइश 40 से 45 क्यूसेक है, मगर पानी गुंजाइश से ज्यादा आ गया है। इस सूरत हाल में पानी आएगा तो हमारे शहर के शहर डूब जाएंगे। हमने जिले में कुदरती आबी गुजरगाहें क्लियर करने की कोशिश की है, कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख की बात करेंगे, जिनका कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के अगले 3 माह के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएं। 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खात्मे से गरीब तबके को रिलीफ मिलेगा। 130 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान वज़ीर ख़ारजा और इत्तेहादी हुकूमत की काविशों का नतीजा है। मुल्क में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। इमरान खान सियासत खेल रहा है। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस और तोशा खाना अब तक भुलाया नहीं जा रहा। इमरान खान सैलाबी सूरत हाल में जल्द से और सियासत करके मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। इमरान खान सैलाब ज़दगान से ज्यादा शहबाज गिल की फिक्र में मुब्तला है। ये साथ ॾिठा आहियूं बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर टाउन जे टेंट सिटी में असां शिकारपुर में 2 टेंट सिटीज़ क़ाइमु कया आहिनि। हिकिड़ो हिन ग्राउंड ते आहे जेको बेनज़ीर टाउन आहे, शहीद बेनज़ीर टाउन। ॿियो आहे कुंदन रेजिडेंसी जे भरिसां ऐं तक़रीबन उते त माण्हू असां कुझु शिफ्ट कया आहिनि। हिते असां उहो बंदोबस्तु कयूं पिया। ॿिया टेंट सिटी बि असां ठाराइण जी कोशिश में आहियूं ऐं इनशाला स्कूलनि मां माण्हुनि खे ॿारनि खे कढी हमरान जेके उते आहिनि तरसियल जेके बोर्ड जा मुतासिरीन कढी हिते हुननि खे आबाद कंदासीं। जेके अचनि था हिते हुननि खे मानी ऐं राशन वग़ैरह बि ॾींदासीं। हिते हिकिड़ो सुठो बंदोबस्तु असां पंहिंजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी हिदायत ते कयूं पिया ऐं इनशाला अहिड़ा कई टेंट सिटी असां शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में ठाहींदासीं। असांखे टेंट्स जी ज़रूरत आहे, जेके असांखे कुझु मिलिया आहिनि, कुझु असां पाण बि कोशिशि कई आहे, कुझु BDA में जा ऐं NDA में जा असांखे टेंट्स आहिनि। उन्हनि जे करे असां चऊं था त इहे शहर में
اسکول خالی کرائے ऐं 10 cities ठाहिजनि उन जी कोशिशि में आहियां हूअं अॼु असां ॾिठो आहे त इनशाला हिनखे बि अॼु सुभाणे शाम ताईं या सुबुह ताईं एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची की तबाहाल सड़कों की असर नौ तामीर और बहाली के कामों का आगाज कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक था और हमेशा खतरनाक रहेगा। पूरा मुल्क डूबा रहा और न्याजी जल्द से जुलूस में मसरूफ है। ये वक्त सियासत का नहीं, मिलकर काम करने का है। मॉनसून की हालिया बारिशों के बाद कराची की सड़कों की असर नौ तामीर और बहाली कमीशन एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहीद मिल्लत फ्लाईओवर से केपीटी फ्लाईओवर तक 2 तरफा सड़क की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के सबब ज्यादा बारिशें हुई, सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के बाद उनकी बहाली पर भी काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पूरा मुल्क डूबा हुआ है और इमरान खान जल्द से और जुलूस में मसरूफ है। ये मुल्क के लिए खतरनाक था और खतरनाक रहेगा। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि कोरंगी कॉजवे पर पुल तामीर करने की मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दे दी है। ये मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा, जिससे लाखों शहरी मुस्तफीज होंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993 की हुकूमत में बनाई गई थी और इसके बाद इस सड़क का एक हिस्सा बारिशों से और एक नई पानी की लाइन डाली गई थी, उसके बाद तबाही का शिकार हो गया था। बल्दिया उज़्मा कराची ने KMC ने ये फैसला किया कि जैसे ही ये बारिशों का सीज़न ख़त्म होता है तो कुछ ऐसी सड़कें जहाँ रोड कारपेटिंग करने की ज़रूरत है वो भी की जाए और कुछ ऐसे एरिया, कुछ ऐसी सड़कें जिनकी असरन और तामीर करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म आपको उसके फ़वाइद मिल सकें। तो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे उनमें से एक सड़क है जिसका इंतखाब बल्दिया उज़्मा कराची ने किया और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि तकरीबन 525 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए लागत पर यह मंसूबा बल्दिया उज़्मा कराची बना रहा है। ना सिर्फ इस सड़क की ड्रेन के ऊपर काम किया जाएगा, इस सड़क की जो एक साइड पानी की लाइन डलने से तबाह हो गई थी उसकी रिहैबिलिटेशन होगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रफीक कुरैशी ने वज़ीर बल्दियात व चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह और वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम की हिदायत पर वाटर बोर्ड मुलाजमीन का देरीना मुतालबा हल करते हुए डवा को फार्मेसी को वाटर बोर्ड के पैनल पर लाने की मंजूरी दे दी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD मोहम्मद रफीक कुरैशी ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि वाटर बोर्ड मुलाजमीन को सेहत समेत तमाम बेहतर सहूलियात फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए आगे भी वाटर बोर्ड मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब डवा को फार्मेसी को वाटर बोर्ड के पैनल पर लाने की मंजूरी देने पर इंजीनियर्स और ऑफिसर्स एसोसिएशन वाटर बोर्ड के सदर नदीम अहमद किरमानी, जनरल सेक्रेटरी शुएब, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब समेत वाटर बोर्ड के दीगर अफसरान व मुलाजमीन और ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम और MD वाटर बोर्ड रफीक कुरैशी से इजहार तशक्कुर किया। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी मीर गुलाम कादिर तालपुर ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन के हमरा सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए जाने वाले आर्जी रिहाइश गाहों का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन कैंपों का दौरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी मीर गुलाम कादिर तालपुर ने कहा कि इस वक्त मुश्किल में हम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर से हिदायत दी है कि सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए आर्जी रिहाइश गाहों और अतराफ में सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी और पीने के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि सियासी और समाजी नुमाइंदों के साथ साथ बल्दिया गरबी के अफसरान
अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। बल्दिया गरबी में सैलाब मुतासरीन के आर्जी रिहाइश गाहों और इनके अतराफ के रास्तों पर सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। अपने घरों से दूर खानदान उस वक्त मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मदद, तसल्ली और तशफ़ी की ज़रूरत है। म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान व दीगर के अफसरान के हमरा इमदादी सामान रवाना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि सिंध, बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से सैलाब मुतासरीन अब भी आ रहे हैं, जिनकी मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सूरत हाल नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। आपने दो बातें कही, एक तो वापसी तो क्या, पहले तो उसकी रिहेबिलिटेशन जो होगी उसमें बड़ा टाइम लगेगा। ये बेचारे जिस तरीके से आए हैं, अभी पूरा सिंध और मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा कि जितना आधा पाकिस्तान तकरीबन जो है ना इस मसले से दुश्वार है और मुसीबत ज़दा जो लोग हैं अभी परेशान हैं जिस तरीके से। पहली तो ये है कि हम उनको रिलीफ और रेस्क्यू करें, उसके बाद होगी फिर ये इनकी इंदराज होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, इधर यहाँ से लेके फिर वहाँ पे चल में भी रखा हुआ है, जिसको मदद रखते उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं हम उनको मुहैया कर रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। सर लेडीज़ की चीज़ें हैं, बच्चों की ज़रूरियात हैं और बड़ों की हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें हमारी अपनी भी DMCs। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि इस्लाही निज़ाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आम आदमी को फौरी रिलीफ मुहैया हो जाता है। जिस इदारे में मुझे काम करने का मौका मिला है, इससे मेरी वाकफियत बहुत पुरानी है। मेरी ये कोशिश रही कि यहाँ हर सम से बेहतरी आया हो। खिदमत के सफ़र में मुश्किलात आती हैं, जिसको हिकमत अमली के तहत हल किया जाता है। मरकजी ऑफिस में आला अफसरान से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों का कहना था कि ज़िला कौंसिल के हदूद का अगर जायज़ा लिया जाए तो रकबे के एतबार से कराची के हदूद का तकरीबन 70% है। वसाइल को सामने रखकर मसाइल को हल किया जा रहा है। हर सतह पर उमूर बिला तफरीक हो रहे हैं, जो हमारे विजन की अक्कासी है। इलाकाई सूरत हाल पर यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत का अमल रोज़ अव्वल की तरह ताहाल जारी है। इनके ताउन की बदौलत हर सतह पर बेहतरी नजर आ रही है। अमले को अच्छी कारकर्दगी पर जहाँ सराहते हैं, वहीं कोताही पर कार्रवाई भी फौरी तौर पर अमल में लाई जाती है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।